اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ عبدالرزاق راجپوت، ایک مرتبہ پھر شان مصطفیٰ کوئز کمپٹیشن سیزن 3 کے اندر آج ہمارا یہ چوتھا پروگرام ہے، اور اس پروگراموں کو کرانے کا مقصد یہ ہے کہ بچے ہیں ان میں دینی تعلیمات اور معلومات میں جو ہے وہ اضافہ ہو۔ آج ہمارا یہ چوتھا پروگرام ہے جس کا کچھ دیر بعد آغاز ہونے والا ہے۔ آج ہمارے ساتھ جو اسکولیں ہیں ان میں حاجی محمد عثمان پبلک اسکول بٹبائٹی، ان کے بچے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ شاہین پبلک اسکول اتنگوں کے بچے جو ہیں وہ آج اس چوتھے پروگرام میں ایک دوسرے سے مد مقابل ہیں۔ ان کے ساتھ ساتھ تیسری جو ہماری ٹیم ہے وہ ڈائمنڈ پبلک اسکول لون کھان کی ہے، جو جن کے درمیان جو ہے آج ہمارا یہ چوتھا پروگرام ہوگا اور ایک دوسرے سے یہ مد مقابل ہوں گی۔ تمام ٹیموں سے جو ہے وہ پہلے راؤنڈ میں 5 سوال پوچھے جائیں گے، اور ان کے جوابات جو ہیں یہ اسکول کے تمام جو بچے ہیں یہ ہمیں دیں گے۔ اگر کوئی بھی پروگرام برابری پہ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد 5ویں جماعت کی اسلامیات کی جو کتاب ہے اس سے ان سے سوالات کیے جائیں گے۔ تو باقاعدہ ہم جو ہے اپنے چوتھے پروگرام کا اور شان مصطفیٰ کوئز کمپٹیشن سیزن 3 کا جو ہے چوتھا پروگرام ہے اس کا ہم باقاعدہ جو آغاز کرتے ہیں تلاوت کلام پاک سے، اور تلاوت کلام پاک شاہین پبلک اسکول کے طالب علم ہیں محمد آصف، وہ تلاوت کلام پاک پیش کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، صدق اللہ العلی العظیم۔ سبحان اللہ۔ یہ تھی تلاوت پیش کی محمد آصف، شاہین پبلک اسکول سے ان کا تعلق تھا۔ آج چوتھے پروگرام میں جو نعت کا شرف حاصل کر رہے ہیں پڑھنے کے لیے وہ شاہین پبلک اسکول کے اساتذہ ہیں ارسلان قائم خانی۔ ان سے ہم کہیں گے کہ وہ حضور کی بارگاہ میں نعت رسول مقبول کا شرف حاصل کریں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے۔ میں بے قرار تھا، میں بے قرار تھا، میرا قرار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے۔ کہاں عرض مدینہ، کہاں میری ہستی، کہاں عرض مدینہ، کہاں میری ہستی، یہ حاضری کا شرف بار بار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے۔ اور محبتوں کا سلا کون ایسے دیتا ہے،
محبتوں کا صلہ کون سے دیتا ہے سنہری جانیوں یا ریگار آپ سے ہے سنہری جانیوں یا ریگار آپ سے ہے میں بے قرار تھا میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے اور سیاہ کار ہوں آقا بڑی ندامت ہے گناہ گار ہوں آقا بڑی ندامت ہے قسم خدا کی یہ میرا وقار آپ سے ہے قسم خدا کی یہ میرا وقار آپ سے ہے میں بے قرار تھا میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے حضور میری تو ساری سبحان اللہ حضور میری تو ساری بہاریں آپ سے ہیں. یہ تھے ارسنال جنہوں نے شرف حاصل کیا نعت مقبول کا اور نذرانہ عقیدت پیش کر رہے تھے حضور کی بارگاہ میں. ابھی ہم باقاعدہ جو ہے اپنے پروگرام کا جو ہے آغاز کرتے ہیں. باقاعدہ جو پروگرام کا آغاز کر رہے ہیں. پہلا سوال ہم کریں گے حاجی محمد عثمان پبلک اسکول کے بچوں سے جو بٹوائٹی سے سفر کر کر آئے ہیں. ہمارا پہلا سوال ہوگا ان سے آج کے ان کے پہلے راؤنڈ کا حضرت فاطمہ کے نکاح کا خطبہ کس نے پڑھایا تھا؟ میرا نام میرز میں ساتویں جماعت میں پڑھتا ہوں. میرا اسکول کا نام حاجی محمد عثمان مری پبلک اسکول بٹوائٹی ہے. جواب حضرت فاطمہ کی نکاح کا خطبہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھایا. جواب آپ کا بالکل درست ہے. اگلا سوال ہوگا شاہین پبلک اسکول کے بچوں سے سن 3 ہجری نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کن سے نکاح کیا؟ حضرت حفصہ بنت حضرت عمر سے 3 ہجری کو نکاح فرمایا. جواب آپ کا بالکل درست ہے. پہلے راؤنڈ کا پہلا سوال ڈائمنڈ پبلک اسکول سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس تاریخ کو ان کے مقابلے کے لیے روانہ ہوئے؟ اس غزوہ کا کس نام سے جانا جاتا ہے؟ جواب 12 رمضان المبارک 2 ہجری میں. سوال ایک مرتبہ پھر میں دوہرا دیتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس تاریخ کو ان کے مقابلے کے لیے روانہ ہوئے؟ اس غزوہ کو کس کے نام سے جانا جاتا ہے؟ 10 محرم 5 ہجری میں غزوہ ذات الرقہ. جواب کا بالکل درست ہے. حاجی محمد عثمان مری پبلک اسکول کے بچوں سے سوال ہوگا. پہلے راؤنڈ کا دوسرا سوال غزوہ عہد کا سبب کیا تھا؟ بدر میں کفار کی کثیر تعداد کی ہلاکت کے نتیجے میں پیدا شدہ جذبہ انتقام غزوہ احد کا سبب تھا. آپ کا جواب بالکل درست ہے. بڑھتے ہیں شاہین پبلک اسکول کے بچوں کی جانب. کس تاریخ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کفار کے قافلے کے راہ روکنے کے لیے مجاہدین کے ساتھ نکلے؟ 12 رمضان 2 ہجری کو. بالکل آپ کا جواب درست ہے. اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں.
अबू जहल को किन दो कमसन बच्चों ने हलाक किया? जवाब है मुआज़ और मूस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, दो भाइयों ने ये अफवाह के बेटे थे जिन्होंने अबू जहल को हलाक कर डाला। जवाब आपका बिल्कुल दुरुस्त है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। मोहम्मद उस्मान मरी के बच्चों से, हज़रत उस्मान को असहाब बदर में शुमार किया जाता है या नहीं? तो उस्मान असहाब को बदर में शुमार किया जाता है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है। जवाब आपका बिल्कुल दुरुस्त है। शाहीन पब्लिक स्कूल के बच्चों से अगला सवाल, सुईक का मतलब क्या है? अरबी में सुतून को सुई कहते हैं। बिल्कुल आपका जवाब दुरुस्त है। डायमंड पब्लिक स्कूल के बच्चों से अगला सवाल, पहले राउंड का तीसरा सवाल, हज़रत फातिमा की शादी 2 हिजरी में किसके साथ जवाब हुई? हज़रत अली के साथ। जवाब आपका बिल्कुल दुरुस्त है। मोहम्मद उस्मान मरी के बच्चों से होगा सवाल, कुरान मजीद की दुल्हन होने का एजाज़ किस सूरह को हासिल? सूरह रहमान। बिल्कुल आपका जवाब दुरुस्त। शाहीन पब्लिक स्कूल के बच्चों से सवाल, कुरान मजीद की किस सूरह को सले से कुरान कहा जाता है? जवाब सूरह इखलास को। बिल्कुल आपका जवाब दुरुस्त है। डायमंड पब्लिक स्कूल से अगला सवाल, अल्लाह ताला ने कुरान पाक में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लफ्ज़ नबी से कितनी बार मुखातिब फरमाया है? जवाब मुख्तलिफ मकामात पर 22 मरतबा। बिल्कुल जवाब आपका दुरुस्त है। आखिरी पहले राउंड का आखिरी सवाल होगा हाजी मोहम्मद उस्मान मरी के बच्चों से, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को कश्ती का मौजिद कहा जाता है, बताइए उन्होंने कश्ती किसकी हिदायत पर बनाई थी? इस्माईल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला की हिदायत पर कश्ती बनाए थे। सवाल एक मरतबा फिर सुन लें, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को कश्ती का मौजिद कहा जाता है, बताइए उन्होंने कश्ती किसकी हिदायत पर बनाई थी? हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने कश्ती अल्लाह ताला की हिदायत पर बनाई थी। जवाब आपका बिल्कुल दुरुस्त है। बढ़ते हैं शाहीन पब्लिक स्कूल के बच्चों की जानिब, कुरान मजीद की एक हुर्फी नाम वाली सूरतों के नाम बताएं। सूरह काफ, सूरह स्वाद। बिल्कुल आपका जवाब दुरुस्त है। पहले राउंड का आखिरी सवाल होगा डायमंड पब्लिक स्कूल से, दौरान जहाद की सूरह को पढ़ने की तलकीन की गई है? जवाब सूरह अनफाल। बिल्कुल जवाब का दुरुस्त है। पहला राउंड कंप्लीट हुआ जिसमें तमाम टीमों ने जो है भरपूर तैयारी करके आई थी, तमाम टीमें और बराबरी पर हैं। दूसरे राउंड का आगाज़ करते हैं। दूसरे राउंड का पहला सवाल हाजी मोहम्मद उस्मान मरी पब्लिक स्कूल के बच्चों से, कुरान मजीद में कितनी आयात तहरीम हैं? 250। बिल्कुल आपका जवाब दुरुस्त है। शाहीन पब्लिक स्कूल के बच्चों से, अल्लाह ताला ने योम जंग बदर का नाम क्या रखा? यौमुल फुरकान। बिल्कुल आपका जवाब दुरुस्त। बढ़ते हैं अगली सवाल की जानिब और वो जवाब देंगे डायमंड पब्लिक स्कूल के बच्चे। मक्की सूरतों की कोई पहचान बताएं। जवाब, इन आयत में इल्म लिखने पढ़ने या इल्म सीखने का जिन आयत में जिन आयत में इल्म सीखने और लिखने पढ़ने का जिक्र है। जवाब का बिल्कुल दुरुस्त है। चलो बढ़ते हैं अगली तरफ। मोहम्मद उस्मान पब्लिक स्कूल के बच्चों से, मदनी सूरतों की पहचान बताएं। जिन आयत में काम पर जोर दिया गया है। दोबारा रिपीट करें। जिन आयत में काम करने पर जोर दिया गया बिल्कुल है। जवाब का दुरुस्त है। बढ़ते हैं अगली जानिब। शाहीन पब्लिक स्कूल के बच्चों से, सहाबा के अहद में आयत की निशानी क्या थी? 3 नुक्ते। बिल्कुल आपका जवाब दुरुस्त है। डायमंड पब्लिक स्कूल की जानिब, कुरान पाक की किन आयत को सरदार आला आयत कहते हैं? जवाब आयतुल कुर्सी। बिल्कुल आपका जवाब दुरुस्त है। बराबरी पे चल रहे हैं आप। किस नन्हे सिपाही आंसू बहाकर गज़वाए बदर में शिरकत की इजाज़त हासिल की? हज़रत औद बिन अबी वक़ास के छोटे भाई हज़रत उमैर बिन अबी वक़ास ने। दोबारा जवाब दिए। हज़रत औद बिन अबी वक़ास के छोटे भाई हज़रत उमैर बिन अबी वक़ास ने। सवाल आपने सुन लिया सही? जी सर। किस नन्हे सिपाही ने आंसू बहाकर गज़वाए बदर में शिरकत की इजाज़त हासिल की? हज़रत सैद बिन अबी वक़ास के छोटे भाई हज़रत उमैर बिन अबी वक़ास ने। एक दो बार दोबारा। हज़रत सैद बिन अबी वक़ास के छोटे भाई हज़रत उमैर बिन अबी वक़ास ने। ठीक है, जवाब आपका बिल्कुल दुरुस्त है। शाहीन पब्लिक स्कूल, कुरान की इस वाहिद सूरह का नाम बताएं जो अपने नज़ूल के एतबार से मक्की मदनी दोनों हैं। सूरह हज।
तो आपका बिल्कुल दुरुस्त है। डायमंड पब्लिक स्कूल, कुरान मजीद में कितने मुकामात पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को या हय्युल नबी कहकर मुखातिब किया गया? जवाब 11 मरतबा, 11 मकामात पर। बिल्कुल आपका जवाब दुरुस्त है। सवाल है, मुशरिकीन मक्का किस तारीख को वाहिद के करीब पड़ाव डाल चुके थे? 12 शवाल 3 हिजरी को। जवाब आपका बिल्कुल दुरुस्त है। शाहीन पब्लिक स्कूल, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौन सी फूफी ने भी जंग अहद में दाद सुजात हासिल की? हज़रत हमजा के हमशा हज़रत सफ़िया ने दास सजाद दी। जवाब आपका दुरुस्त है। डायमंड पब्लिक स्कूल, अहद के बाद किसने सबसे पहले मदीना पर हमले का कसद किया? कबाल अनमा व सालबा ने। सालबा ने। जी, कबाइल अनमा इनमा व सालब ने। सालब ने। जो आपका दुरुस्त है। गज़वा दोमता अल जंदाल कब पेश आया? रबी अव्वल 5 हिजरी में। जो आपका दुरुस्त है। सही आ गया क्या? गज़वा सुइक कब पेश आया? जुलहज 2 हिजरी। फिर वो तो नहीं है सवाल, नहीं वो दूसरा था, इससे ही मिलता जुलता है, वो मतलब था। आखिरी सवाल पहले राउंड का, फतह बदर के बाद कितने दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ क़याम फरमाया? जवाब 3 दिन। बिल्कुल जवाब आपका दुरुस्त है। तमाम टीमों ने अपने अपने हिस्से के 10-10 सवालात के जवाब दे दिए हैं। तमाम टीमें जो हैं बराबर हैं। अब अगला राउंड जो है वो हमारा होगा इस्लामियात की 5वीं की किताब से। तो आप तैयार हैं जवाब देने के लिए? MCQs होगा पहला, ठीक है, और तमाम टीमों से एक एक MCQs का सवाल पूछा जाएगा। नमाज जुम्मा अदा की जाती है असर के वक्त, जोहर के वक्त, फजर के वक्त, इशा के वक्त? जोहर के वक्त। जवाब आपका बिल्कुल दुरुस्त है। अगला सवाल होगा आपसे, जो भी टीम यहाँ पर गलती करेगी वो टीम निकल जाएगी प्रोग्राम से। नमाज जुम्मा में कितनी रकातें फ़र्ज हैं? 2। बिल्कुल जवाब आपका दुरुस्त है। ईद उल अज़हा किस अजीम पैगंबर की कुर्बानी की याद में मनाई जवाब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। बिल्कुल आपका जवाब दुरुस्त है। मस्जिद नबी की इमारत कच्ची ईंटों और गारे से बनाई गई है, दुरुस्त या गलत? दुरुस्त। जवाब दुरुस्त है। मदीना मनव्वरा हिजरत करके आने के वक्त हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व असहाबा वसल्लम की 2 अज़वाज मोहतरात थी, सही या गलत? सही है। मस्जिद नबी की लंबाई 100 हाथ थी, दुरुस्त? दुरुस्त। अहद पहाड़ मदीना से दूर है, ऑप्शन है 5 मील, 3 मील, 2 मील या 4 मील? 4 मील। अहद पहाड़ मदीना से दूर है, 2 मील, 3 मील, 4 मील, 5 मील? 5 मील। आपका जवाब गलत हुआ। जवाब है इसका 3 मील। शाहीन पब्लिक स्कूल से, गज़वा अहद में मुसलमानों की तादाद थी 3,313, 1,000 या 700? 700। जवाब आपका बिल्कुल दुरुस्त है। गज़वा अहद में मुसलमान शहीद हुए 40, 70। बिल्कुल जवाब आपका दुरुस्त है जी। अब मुकाबले के अंदर आप जो है बाहर हो चुके हैं, अब दोनों के दरमियान जो है वो मुकाबला चलेगा, आप बैठे रहेंगे प्रोग्राम में। सवाल है, मीसाक मदीना का मतलब बयान करें। मीसाक की मना है मौजूदा मीसाक से मुराद है रसूल सल्लम ने इस्लाम मुसलमानों के आपस में भाई भाई बना दिया। एक
फिर सुन लें। मिसाक मदीना का मतलब बयान करें। मिसाक की लफ्ज़ी माना है माहिदा। मिसाक से मुराद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों के साथ आपस में भाई भाई बना दिया, इस्लाम में अखवत कायम किया, मुसलमानों का आपस में मुशरिकीन मक्के का आपस में इस्लाम में कायम किया। जवाब आपका गलत हो गया है। मिसाक के लफ्ज़ी माना मुआहदे के हैं। मिसाक मदीना से मुराद वो मुआहदा है जो हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ लाने के बाद मदीना मुनव्वरा की छोटी सी रियासत में अमन के क़याम और इसको मजबूत और मुस्तहकम बनाने के लिए मुसलमानों, यहूदियों और दीगर कबाइल के माबीन किया था। जवाब आपका बिल्कुल गलत हो गया है। मिसाक मदीना की कोई भी 5 दफ़ात लिखें, बताएं। जवाब मुआहदे के फरीक में से कोई भी कुरैश को पनाह नहीं देगा, कुरैश को मक्का पनाह नहीं देगा। अब कोई भी हलीफ कोई भी आदमी अपने हलीफ की जुर्म का जिम्मेदार नहीं होगा। जवाब आपका भी गलत है। मीसाक मदीना 54-45 दफ़ात पर मुश्तमिल था, जिनमें से अहम ये है मदीना मनव्वरा के तमाम कबाइल व अमन व अमान से रहेंगे और अमन के क़याम में सब लोग शरीक होंगे। इसका काफ़ी लंबा जवाब है, आपका जवाब गलत है। दोनों टीमें बराबरी पर ही हैं। सवाल है जी, मुसलमानों का हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में क्या अकीदा है? मुसलमानों का हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में क्या अकीदा है? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का ये अकीदा है कि अल्लाह ताला ईसा अलैहिस्सलाम को आसमान पर उठा लिया। और आपने सवाल ही मेरे पूरा नहीं सुना। मुसलमानों का हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में क्या अकीदा है? अल्लाह ताला ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को आसमान पर उठा लिया और मुसलमानों का ये अकीदा है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आसमान पर मौजूद है और क़यामत के दिन अल्लाह ताला ज़मीन पर उतारेंगे और दजाल और हाथ में उसका दजाल की कत्ल होगा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के निहायत करीब और मुखलिस लोगों को क्या कहा जाता है? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के निहायत करीब और मुखलिस लोगों को क्या कहा जाता है? वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के हवारी के नाम से मशहूर है। हवारी का माना है निहायत करीब मदद करने वाले लोग। सवाल आपने सुना है पूरा? वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के हवारी के नाम से मशहूर है। एक दफ़ा फिर अब आखिरी दफ़ा रिपीट कर रहा हूँ सवाल। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के निहायत करीब और मुखलिस लोगों को क्या कहा जाता है? जवाब हवारी। जवाब आपका गलत हुआ। इसका जवाब है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाने वाले नबी इसराइल में से कुछ लोग वो थे जो आपके निहायत करीब और मुखलिस थे। वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के हवारी के नाम से मशहूर हैं। बेटा पूरा जवाब चाहिए ना, पूरा जवाब चाहिए। उन्होंने भी पूरा जवाब दिया है, आपसे भी पूरा जवाब लेंगे। नहीं, नाम का नहीं होता बेटा, नाम का नहीं होता। देखो ना, ये सवाल है मैंने आपसे किया था, ये पूरा कंप्लीट मैंने आपको पढ़ के बुलाते हैं। आपका जो सवाल है उसका जवाब यही है, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाने वाले नबी इसराइल में से कुछ लोग वो थे जो आपके निहायत करीब और मुखलिस थे। वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के हवारी के नाम से मशहूर है। ठीक है ना, इसमें था निहायत करीब और मुखलिस लोगों को क्या कहा जाता है। पूरा इसका सवाल का जवाब ये कंप्लीट है। ठीक है, तो शाइन पब्लिक स्कूल की जो टीम है वो अगले राउंड के लिए उन्होंने क्वालिफाई कर लिया है। तो मुझे दी का इजाज़त, अल्लाह ने के बाद। मज़ीद ख़बरनि ऐं तफ़सीलात लाइ विज़िट कयो असांजी वेबसाइट www.awamiNewsHD.com ऐं ॾिसंदा रहो अवामी न्यूज़ HD।